Okay, so we are doing the past papers of circles. So these are October, November past papers of 2020. We'll try to complete all of the past papers of 2020 in today's class. So as you can see in the first part, what is happening right now, you're looking towards this part. So you have the diagram shows a circle with center A passing through point B. A second circle has center B and passes through A. The tangent at B to the first circle intersects the second circle at C and D. The coordinates of A and the coordinates of B are already given. Find the equation of the line of CBD. So this is the first point which the examiner has already given to us. So we are supposed to do that. So I'm going to mark down the key information which the examiner has already given to me. The diagram shows a circle with center A and passing through B. A second circle has center B passing through A. The tangent at B to the first circle intersect the circle. The coordinates of A are already given. The coordinates of B are already given. So right now they want you to figure out the equation of this line of CBD. So as you can see, if I'm going to mark the CBD is a tangent, right? So they are going to make an angle of 90 degree. I can use the coordinates of B. I can use the gradient of AB to figure out the gradient of this line of CBD. So first thing is I'm going to take out the gradient value, right? So we are trying to figure out the gradient M of AB. I'm going to use the same formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, the same formula. I'm going to put down the coordinates. This is x1, this is y1, this is x2, and this is y2. So 2 minus 4, x2 is 3 minus minus 1. This is going to be negative 2 upon 4. And finally, the value of gradient is going to be 1 time 2 time negative 1 upon 2. So if the value of m1 is negative 1 upon 2 and the other line is perpendicular towards it, so that means the gradient of the other line, which is the line of CB, is going to be positive 2. And you are supposed to use the coordinates of B as you can see in the diagram. You got the gradient of this line, which is negative 1 upon 2. So you can easily figure out the gradient of this line, which is 2. And the coordinates of B are going to be 3, 2. This is the value of x and this is the value of y. So this is the value of x, this is the value of y. Just write down the equation y minus y1 is equals to m x minus x1. Just put down the values. Y की value आपके पास 2 है, m is 2, x minus 3, just multiply it, y minus 2, 2x minus 6, and y is equals to 2x minus 6 plus 2, and that is going to be y equals to 2x minus 4. So this is going to be your equation of this line of CBD. And that's how you're going to score 2 marks. Is there any confusion? Is it clear? Can I move forward now? Okay, moving forward towards the next part. In the other part, they are asking find an equation of the circle with center B. A circle with a center of B. So the coordinates of this center is going to be 3, 2. Now, if I want a circle whose center is B, so this center is basically B. I want this thing. So I need two kind of things in a center. I need A, B. The center is already known, which are the coordinates of B. I need the radius also. Now, how am I supposed to figure out the radius? So I can easily figure out the radius of this line by using the distance of A and B. This is going to be the radius of this circle. ये आपके पास इस वाले circle का radius हो जाएगा. So now we are trying to use the distance formula for the radius of it, और हमने यहाँ पे distance formula use किया. So now d is equals to, that is going to be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So I am going to write down again the coordinates of A and B. The coordinates of A were minus 1, 4. The coordinates of B are already written. This is x1, this is y1, this one is x2, this is y2. हमने यहाँ पे coordinates put करा है. x2 की value is 3 and minus minus is going to be plus 1 whole square, and the value of y2 is 2 minus 4 whole square, and then this is going to be 4 square plus minus 2 square, and finally I'm going to get 16 plus 4, and the radius is going to be square root of 20. So this is going to be my radius. So I'll be writing my equation. This was my center. Center is 3, 2. So I'll be writing my equation x minus a whole square plus y minus b whole square, just putting down the values. So x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square is equals to square root 20, and there's a square, so 8 plus 3 cancels. So the equation of a circle is going to be x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square. So that is going to be the equation of this circle. So now I know the equation of this circle in this part. Moving forward towards the next part, they are saying find by calculation the x coordinate of C and D. So as I move towards this diagram, so as I can see in this diagram, that this
equation, I know the equation of this circle, right? I know this equation, the whole thing. I know this equation also. Now the point of intersection of this circle and this straight line are C and D. So basically I'm trying to figure out the point of intersection and I just need the X coordinate. I'm not talking about the Y coordinate. So what will I try to do? I'm going to use both of the equations and I'm just going to put it down. How? Okay, so let's do the working. So I have the first equation, which was the equation of the line of CD, which is y is equals to 2x minus 4. There's the equation of the line. Now y is already being made as a subject. I'm going to copy the equation of the circle, and which is x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square is equals to 20. And I'm just going to replace y with 2x minus 4. So I'll be writing x minus 3 whole square plus, instead of writing y, I'll be writing 2x minus 4 minus 2 whole square is equals to 20. And then I'm going to open it properly and then I'm solve it to get 3 marks. And finally I can easily get the coordinates of, get the x coordinate of these two parts. So now after solving it, I can easily just open it down. So it is going to be x minus 3 whole square. Then this is going to be 2x minus 6 whole square is equals to 20. So you have x square minus 6x plus 9. And then you have plus 4x square minus 2 multiplied by 2. This is going to be 4. 4 multiplied by 6, 24x. So this is going to be 24x minus 30 plus 36 is equals to 20. So now after simplification, I'll get 5x square. This will become minus 30x plus 9 plus 36, and 9 and 36 are being added together. तो जब आप 9 और 36 को आपस में add up करोगे, so you'll be getting an answer, और ये आपके पास 45 आ जाएगा, and then you have a negative 20. So that's how you're going to figure out the equation. So 5x square minus 30x, और ये आपके पास इस तरह से अगर ये equation निकल आ जाएगी, and that is going to be positive 25 is equals to 0. तो ये आपके पास यहाँ पे आ गई, right? अब आप इसको फैक्टराइजेशन वगैरह करके यहाँ पे वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 5. तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड देन यू हैव अ पॉजिटिव 5. सो आपको दो 5 चाहिए, मतलब 5 के फैक्टर्स चाहिए, जिन दो फैक्टर्स से अगर आप 6 बना सको. सो नेगेटिव 5x नेगेटिव x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो आई विल बी टेकिंग x एज कॉमन, x माइनस 5 आ गया, माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. आपके पास एक वैल्यू आ रही है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट वैल्यू इज 1. एक वैल्यू आपके पास 1 आ गई. दूसरी वैल्यू एज यू आर गेटिंग x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो द वैल्यू ऑफ x इज 5. तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, आपको सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी थी c एंड d की. And the first one is 1 and the other one is 5. Is there any confusion? Is it clear? Can I move forward now? Okay, moving towards the next part, you have this part. Now they are saying a circle has center B. The point A, the circle has center B and the point A lies on the circle. Find the equation of the circle. So there's a center of a circle. This value is A, this one is B. So first thing which I'm supposed to do is to calculate the distance. हमें सबसे पहले equation निकालनी है. So first thing is I want to take out the value of distance. तो आपने यहाँ पे distance formula लगाया for radius. And again I'm going to use x2 minus, ये मेरा हो गया first coordinate x1 y1 and this is going to be x2 and y2. So I'll be using the value of x2 as, ये हमने लिखा 5 minus minus plus 1 whole square, and then the value of y2 which is 1 minus minus ये plus 2 हो जाएगा. So this is going to be 6 square, this is going to be 3 square, and finally you'll be getting 36 plus 9, और ये आपके पास आ जाएगा square root of 45. So this is the value of the radius. You got the value of radius. Now if you want the equation of a straight circle, तो a और b की values already आ चुकी हैं. So y minus a whole square plus x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square. Just put down the values. तो आपके पास यहाँ पे values आई, and this is going to be x minus, the value of a is going to be 5 and the value of b is going to be 1. And instead of writing r square आप लिखोगे square root of 45. So this will become x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square is equals to 45. ये आपके पास यहाँ पे equation आ जाएगी. So that was again a very simple thing. आपने यहाँ पे 3 marks gain कर दिए, बड़े simple से part थे. Was very easy. Moving forward towards the other part, now in the next part they are asking point C is such that AC is a diameter of the circle. Point D has coordinates 5, 16. Show that DC
is tangent to the circle. तो tangent की आपको वो शो करना है. So whenever tangent अगर होता है तो that means कि they are making an angle of 90 degree. मैं थोड़ा इसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह करके बता दूं ताकि क्लियर हो कि what we are looking into. So let's say there is a circle. एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. So let's say there is a circle. So A and C. I'm going to mark A and this one is C. और there is the other line which is going through this point. एक मैं example दे रहा हूँ. ये लाइन आपके पास जा रही है. And for example ये लाइन यहाँ पे टच करी है. सिंगल पॉइंट and this point is D right now. ये वाला पॉइंट आपके पास दिए. पॉइंट C is such that AC is a diameter. Point D has coordinates 5, 16. Show that DC is tangent to the circle. So if CD is a tangent to the circle, that means कि उन दोनों का gradient अगर आप multiply करोगे, you will be getting an answer of -1. या आपके पास आंसर -1 आना चाहिए. So first of all, I'll do my working. सही है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे. ये हमारे पास लाइन है और ये वाली लाइन हमारे पास क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए. This is M1, this is M2. So first I'll try to figure out both of the gradients and I'll prove कि whether ये हमारे पास है या नहीं है. अच्छा, now moving forward, the first thing which I'm supposed to do right now is to figure out the gradient of this line. और सबसे पहले हम यहाँ पे gradient की बात करेंगे. So the first thing is what we are looking into right now is the gradient. और सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे B के coordinates यूज कर लूँ या मैं A के coordinates यूज कर लूँ. It's exactly going to be the same thing. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं the gradient of A and C. I'm going to put down the coordinates of A. A के coordinates हमें दिए हुए हैं which are -1, -2 and the coordinates of C जो कि हमें पता है या नहीं पता वो हम देख लेते हैं. Point C is such that okay we don't know the coordinates of C right now. C के coordinates ही हमें नहीं पता. ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है. अब देखो प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उस तरह से भी फिगर आउट कर ही सकते हो. सो इफ़ यू वांट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आप सी के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल लेते हैं ताकि वो हमें हमारे पास नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए भी काम आ जाए. नाउ इफ़ यू वांट टू फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि यार आपके पास ना सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो है बी. सो लेट सपोज कि सी के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी देर के लिए हैं एक्स कॉमा वाई. मैं सी के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ और ए के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो ऊपर दिए हुए हैं दैट आर -1, -2 एंड द मिड पॉइंट. अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, सो मिड पॉइंट ऑफ AC is going to be equals to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. सही है. अब x1 की वैल्यू is going to be -1, this is going to be x divided by 2, y1 की वैल्यू is going to be -2 plus y divided by 2 and already you know the coordinates of the midpoints आपको already पता है और वो coordinates हैं आपके पास 5, 1 because these were the coordinates of B. तो आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व कराओगे तो आप C के x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे. आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कराओगे तो आप C के B वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे. दिस थिंग वी ऑलरेडी डन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो. ये हो जाएगा 2 × 5 10 -1 + x. तो x की वैल्यू आपके पास 11 आ गई. एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर 1 is equals to -2 plus y divided by 2. ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. 2 + 2 is equals to y. y is equals to 4. आपके पास y की वैल्यू आ गई 4. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आपके पास यहाँ पे निकल है विच इज 11, 4. और मैं यहाँ पे BC का अगर ग्रेडियंट निकालूं, सो द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ BC इज गोइंग टू बी अगेन y2 - y1 का फॉर्मूला यूज किया. इसको मैं नाम रखता हूँ M1 का. ये हमने निकाला. ठीक है. y2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. द वैल्यू ऑफ y2 ये हमारे पास हो जाएगा. देखो B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5, 1. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. आपने वैल्यूज पुट कराई. 4 - 1, x2 की जगह पे आपने 11 - 5 ये पुट कराया. सो द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट विच इज कमिंग राइट नाउ इज, ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा 3 और 11 - 5 इज गोइंग टू बी 6. सो द फाइनली द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी 1/2. ये आपके पास M1 की वैल्यू आ गई 1/2 की. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से. सो द वैल्यू ऑफ M1 इज 1/2. अब हम निकालते हैं M2 की वैल्यू. एंड व्हाट इज M2? M2 इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ C. द कोऑर्डिनेट्स आर अगेन 11, 4 एंड D. और D कोऑर्डिनेट्स मैं यूज कर रहा हूँ 5, 16. So this is x1, this is y1, this one is x2, this is y2. Again I'm going to use the formula for M2. y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is going to be 16 minus 4 is going to be 12. This is going to be -6 and the gradient is -2. So आपके पास M2 की वैल्यू आ गई -2. So let's prove कि whether these two are perpendicular or not. आप perpendicular को prove करने के लिए क्या करोगे कि you will be using this equation M1 multiplied by M2 is equals to -1. If you are getting -1 on each side, that means कि yes it is perpendicular. तो आपने M1 की वैल्यू पुट करी 1/2, M2 की वैल्यू -2 पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करा. So hence you are getting
and on both sides you are getting a value of -1, so that means that this line is going to be perpendicular. तो ये आपके पास यहाँ पे perpendicular का केस प्रूव हो गया है, और DC आपके पास यहाँ पे show that DC is a tangent to the circle, so ये यहाँ पे प्रूव आप कर चुके हो. So you got 4 marks on this part. Okay, so moving forward towards the other part, इस वाले part की तरफ move करते हैं. कह रहा है the other tangent from D to the circle touches the circle at E. Find the coordinates E. सही है. So I'm going to draw the diagram. थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ रफली. इट्स नॉट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ रफ रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझ में. लेट्स सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ डी. ये डी वाला कोऑर्डिनेट है. यहाँ से का दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक तो इस वाले पॉइंट पे गया, इस वाले पॉइंट पे गया, और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैनी एग्जांपल्स. सो देयर इज अ सेंटर, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. ये मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये आपके पास सी हो गया, और ये थोड़ी देर के लिए ई है. ये आपको कंडीशन दे रहा है. The other tangent from D to the circle touches the circle at E. E के ऊपर भी वो टच कर रहा है. और इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या गिवन है. आई ऑलरेडी नो द ग्रेडियंट ऑफ DC. नाउ व्हाट वाज द ग्रेडियंट ऑफ DC? ग्रेडियंट ऑफ DC आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एंड दिस ग्रेडियंट इज -2. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज अ केस ऑफ अ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन का आपके पास केस होता है. तो जब भी रिफ्लेक्शन का केस हो तो ग्रेडियंट ऑफ DE इज गोइंग टू बी +2, एंड बिकॉज ये आपके पास काइट की शेप है, एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये आपके पास आ जाएगा 2. मैंने बताया था कि जब भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो अगर ये -2 होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. यू गाइज ऑलरेडी नो द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ऑफ डी. आपको पता चल गया. जब डी का आपको पता है, यू ऑलरेडी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी विच आर 5,16. आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं 5,16 से. तो आई कैन इजीली फिगर आउट द इक्वेशन. सो y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1. पहले हम ये काम कर लेते हैं. सो y - 16 इज इक्वल्स टू 2, x - 5 आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2x - 10. So y is equals to 2x - 10 plus 16, and finally the equation is going to be y equals to 2x plus 6. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब ये चीज हो गई. Now moving forward towards this particular part, so these 2 points are on the circle, right? तो हमने E से लेकर C तक का एक कॉर्ड बनाया, और हमने बोला था कि अगर मैं इन कॉर्ड का, अगर मैं इस कॉर्ड का बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा इस कॉर्ड का, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इक्वली इन दो पार्ट्स को डिवाइड कर देगा. सो इक्वली अगर पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, सो फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विच आई ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है. C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 11,4, and I know the coordinates of B which are 5,1. So just observe the value of x के यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, राइट. तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा टू मूव टूवर्ड्स 11, आपने +6 कराया, तो ये भी आपके पास 6 हो जाएगा, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये भी आपके पास 6 हो जाएगा. सो इफ आई वांट टू फिगर आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ E, x coordinate of E, if I want to figure it out, तो x coordinate of E is going to be, currently हम 5 के ऊपर हैं, हमें 6 ब्लॉक्स, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू इज 5, और वी हैव टू मूव बैकवर्ड हाउ मेनी ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स, तो ये हो जाएगा 5 - 6 विच इज गोइंग टू बी -1. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -1. एंड वंस यू नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ DE, तो आप उसके अंदर y इक्वल्स टू, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, कि आपने लिखा y equals to 2x plus 6 and just need to put down the value of x as -1. आपने यहाँ पे -1 पुट किया, and then you can easily figure out, और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लोगे E की, and finally आपके पास यहाँ पे E की वैल्यू आ जाएगी in a very simple way. So it is again a very simple part. तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, this is going to be -2 plus 6, y is equals to 4, and finally the coordinates of E are going to be -1, 4. ये आपके पास आ जाएंगे. 2 मार्क्स का पार्ट था, बहुत ईजी था. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो, तो मैं वो एक्सप्लेन करूं, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. सो एक आखिरी हमारा सवाल रहता है, बस वो हमें करना है. कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दो. ओके, सो दिस वन इज द लास्ट वन ऑफ 2020. इसे जरा हम डिस्कस करते हैं. सो दे आर सेइंग राइट नाउ कि अ सर्कल विद सेंटर C, एक सर्कल है विद सेंटर C,
as equation, this is the equation of a circle. Show that the point t minus 6 and 6 is outside the circle. ये show करना है. If you remember one thing, so we have done these kind of concepts, हमने ये करे थे. So I'm just doing the simple step. Or I have this equation of this line x minus 8 whole square plus y minus 4 whole square, and I'm just using this part. और अगर ये वाली वैल्यू देखते हैं, चेक करते हैं, अगर वो 100 से बड़ी आती है फिर हम अपना वो करते हैं. So I'm just putting down the value of x is minus 6 minus 8 whole square plus y is 6 minus 4 whole square. There's going to be negative 14 whole square plus 2 whole square, and that is going to be 14 का जो आपके पास square आता है, that thing is basically going to be 14 196 plus 4, and this value is going to be 200. So as you can see that this value is exceeding your value of r square. So आप यहाँ पे कह सकते हो कि hence it is outside the circle, as you know. Okay, so you got 3 marks on this part because this value was exceeding. So moving forward towards the other part, this part was a very simple part because हमारा concept clear था, तो हमारे लिए बहुत आसानी हुई. Now they are saying that two tangents from T to the circle are drawn. T से अगर हमारे पास दो टेंजेंट निकलते हैं वो ड्रॉ करते हैं. So first we are going to draw a circle. एक हमने सर्कल बनाया और ये हमने दो टेंजेंट बनाया. I'm just drawing a random point T. ये वाला पॉइंट बनाया, यहाँ से अगर एक लाइन निकली, यहाँ से अगर एक लाइन निकल रही है. So lines are like this, और this is the center of a circle. ये हमने यहाँ पे सेंटर बना दिया, सेंटर ऑफ अ सर्कल है, और ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है कुछ, और ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है. This is 90. Show that the angle between one of the tangents CT is exactly 45. So now what we have right now, currently I'm going to just write down the values. So I know the value of radius. The value of radius is going to be this one. I know the point. ये आपके पास boundary है. Value of radius आपके पास r square की value थी 100. So radius की value is going to be 10. So this one is 10 right now. ये वाली value आपके पास 10 है. And the value of CT हमने already ऊपर distance निकाला. The value of CT is square root 200. So this value of CT which I already know, इस वाली value को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि this value is going to be square root of 200. So if I'm going to draw the triangle, और मुझे यहाँ पे angle लेंगे, show that the angle between one of the tangents and the CT, ये वाले एंगल की वो बात करें कि ये वाला जो एंगल आ रहा है, that angle is going to be 45. So let's use this figure. So I know कि यार ये वाली जो वैल्यू है वो hypotenuse हो जाएगा. This is going to be opposite. So I'm going to use the ratio of sine. हमने यहाँ पे sine का ratio use किया. So sine theta is equals to opposite upon hypotenuse. So I'll write sine theta as it is opposite की जगह पर write 10 divided by square root 200. Theta is equals to sine inverse 10 square root 200. And the value of theta is going to be now 45 degrees अगर आप यहाँ पे यूज करोगे. So this was a very simple part. Again representation इसकी बहुत ज़्यादा important थी. तो ये वाला एंगल आपके पास नियरली अराउंड क्या आ गया, 45 आ गया. So this was a simple part. You got 5 marks in this part. If there is any confusion तो please मुझे बता जाओ ताकि मैं वो समझा दूँ. Moving forward towards the other part. Now in this part what is happening is कि हमारे पास दो tangents touch the circle, two tangents touch the circle at A and B. I have the same diagram. जरा इसको मैं बनाता हूँ. I am going to draw the circle first. और एक हम लाइन बनाते हैं यहाँ पे. ये T वाला हमने एक पॉइंट बनाया. And the two lines which are going like this, ये हमारे पास दो लाइंस जा रही हैं. और I am trying to draw the perfect figure. यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. This is C. ये हमारे पास ये रहा स्ट्रेट लाइन. दिस लाइन ये हमारे पास हो गया. और कुछ चीज़ें जो हमें पता है वो मैं उसकी तरफ मार्क कर देता हूँ. So this is I know 45, this is 90. Obviously ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा. ये भी 45 है. कह रहा है find the equation of the line giving your answer in the form. The two tangents form the circle. The two tangents touch the circle at A and B. Find the equation of the line AB. AB की मुझे equation निकालनी है कि AB की equation क्या होगी. AB की equation की बात करते हैं. थोड़ा सा मैं डायग्राम को ठीक करता हूँ ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी हो जाए. और डायग्राम की मैं वो यहाँ पे वो कर देता हूँ. सो राइट नाउ चलो डायग्राम को ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ा सा इसको प्रॉपर करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि मैं ये वाला ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बता दूंगी इस ट्राइंगल के अंदर हो क्या रहा है. सो दिस ट्राइंगल इज लाइक दिस. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसकी दोनों लेंथ एग्जैक्टली ये सेम है. ये भी 45 है, ये भी 45 है. हमने ये पढ़ा था कि अगर आप यहाँ से मिड से अगर कोई भी लाइन कट करोगे
यानी कि आप अगर यहाँ से अगर मिड से अगर कोई भी लाइन यहाँ पे कट करते हुए जाओगे, ये रिप्रेजेंटेशन तो प्रॉपर नहीं करा, लेकिन ये अगर मिड से अगर आप कोई भी लाइन कट करते हुए जाओगे तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ही इसका जो है ना मिड पे वो लाई कर रहा होगा। ये पहली बात थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब देखो होगा ही है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको वापस से रिप्रेजेंटेशन करके प्रॉपर बताता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज, कि पहले मैं एक शेप सिंपल सा बना लेता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। सो दिस इज अ शेप राइट नाउ, इसको थोड़ा हम अलग कर देते हैं इस तरह से। सो दिस इज ए, दिस वन इज सी, और ये लाइन मैंने बना दी, और ये लाइन मैंने बना दी। इट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्राम एक्चुअल में। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45, ये वाला एंगल भी 45 है, ये दोनों लेंथ एग्जैक्टली सेम है। आई वांट टू फिगर आउट द इक्वेशन। अच्छा दिस इज नॉट सी, दिस इज वन इज बी, ये आपके पास यहाँ पे बी हो गया। अब आपको इक्वेशन निकालनी है ए बी की। अगर आप ए बी की इक्वेशन निकालोगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये हाफ से कट करेगा, ये वाली लेंथ भी हाफ होगी, ये वाली लेंथ भी हाफ होगी। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर मैं इसके सेंटर से, ये दोनों लाइंस इक्वल है, ये दोनों लाइंस इक्वल है, अगर मैं यहाँ से अगर वो करूंगा तो ये लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास सेम शेप के थ्रू यही हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट, राइट। ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा मिड पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी तरफ हम जरा यहाँ पे फोकस करके चलते हैं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, फिर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर इंफॉर्मेशन। सो राइट नाउ सबसे पहले इफ आई वांट द इक्वेशन, तो मुझे इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें गिवन है उसकी तरफ मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। सो दिस वाज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, इसको मैं एम, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, और ये वाला पॉइंट है आपके पास टी। सो करंटली अगर मैं इस वाली लाइन का, बिकॉज ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो रही हैं, अगर करंटली मैं यहाँ पे इस वाली लाइन का अगर ग्रेडियंट निकालूं तो आई कैन इजीली फिगर आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ऑफ सी टी, जिसके लिए आई एम गोइंग टू यूज द कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स आर 8,4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी आर -6,6। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आया, सही है। अब हमने y2 माइनस वाई वन से करा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने करा। एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 4, दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 14, एंड द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी -1/7। ये आपके पास m1 की वैल्यू आई विच इज द ग्रेडियंट ऑफ ct। ये आपके पास यहाँ पे ct का ग्रेडियंट निकल आया। जब आपके पास ct का ग्रेडियंट निकल आया, सो यू कैन इजीली फिगर आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ऑफ a से b, आप उसका ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो m2 विच इज गोइंग टू बी, m2 आपके पास आया ए बी का ग्रेडियंट, सो दैट इज गोइंग टू बी नाउ, ये आपके पास हो जाएगा +7। ये वाला ग्रेडियंट भी आपके पास आ गया। यू गाइस ऑलरेडी नो वन थिंग, एक चीज जो आपको यहाँ पे क्लियरली पता है, इफ यू वांट टू फिगर आउट द इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ पे सी और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सही है। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके सो दिस वाज बेसिकली सी, आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, दिस वाज द पॉइंट ऑफ सी राइट नाउ, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। अब द पॉइंट इज कि देखो ये शेप आपके पास सिमेट्रिकल प्रॉपर शेप है, ये भी आपके पास 45 है, ये भी आपके पास 45 है। इट्स अ सिमेट्रिकल शेप, काइट के अंदर भी वो पूरा प्रॉपर तरीके से सिमेट्रिकल बन रहा है। जो हमने वहां पे रिप्रेजेंट किया था वो ये रहा हमारे पास कि जो भी सी टी का आपके पास मिड पॉइंट है दैट इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑल्सो, सही है। बिकॉज ये पूरा आपके पास सिमेट्रिकल शेप बन रहा है, और ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सो नाउ द थिंग, इफ आई वांट टू टेक आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये मुझे चाहिए एम वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा किसका, सी टी का। तो हमने सी टी का मिड पॉइंट निकाला। I'll do the efforts for the midpoint of CT. Again हमने formula use किया x1 plus x2 divide by 2, comma y1 plus y2 divide by 2. x1 की value is going to be 8 minus 6 divide by 2, and this value is going to be y1 की जो वैल्यू है 4 plus 6 divide by 2, और ये हो जाएगा 2 divide by 2, ये हो जाएगा 10 divide by 2, and finally the coordinates are going to be 1,5। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के, आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आपके पास ए बी का ग्रेडियंट आ गया, आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ यू कैन इजीली फिगर आउट द इक्वेशन। सो हमने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से यहाँ पे इक्वेशन निकाली। y1 की जगह पे मैंने 5 फुट किया, m1 की जगह पे 7, x माइनस 1 ये हमने किया, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो जरा मैं सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कराता हूँ। y minus 5 is equal to 7x minus 7. So y is equal to 7x minus 7 plus 5. So y is equal to 7x minus 2. So this is the equation of the straight line. ये हमारे पास equation आ गई and we got 4 marks. So again this was a very conceptual part. ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास conceptually part ये आएगा इस तरह से, ताकि वो proper तरीके से चीज़ें पूछ रहा होगा।
सही है, इतना डिटेल पार्ट आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसका, तो आपको प्रॉब्लम होने जा रहा है फिर। तो फिर हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। एक्स कोऑर्डिनेट की वो बात कर रहा है। अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर राइट नाउ। एक बार वापस है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर राइट नाउ। और मैं एक बार वापस से ये डायग्राम बना रहा हूँ ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ सर्कल। सो दीज आर द पॉइंट्स। ये हमने मार्क किया, ये हमने ए मार्क किया, ये हमने यहाँ पे बी मार्क किया, और एक मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ टी का भी, कि हमारे पास टी का पॉइंट आ गया। थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा ये अजीब तरीके से बन रहा है, सही है। इट्स इट विल बी अ प्रॉपर डायग्राम लाइक दिस। मैं इसे वापस से ड्रॉ करके बनाता हूँ, काइंड ऑफ रफ में डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल के अंदर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास, ये वाला ए वाला पॉइंट है। मैं थोड़ी सी चीज़ों को रफली ड्रॉ करूँगा। सो दिस वन इज लाइक दिस। ये आपके पास इस तरह से कर, ये लाइन बनी, ये वाला यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, सही है। नाउ दिस वन इज टी, ये आपके पास टी बन गया। अब देखो द पॉइंट इज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ए बी वाली लाइन ये रही हमारे पास, और एक हमारे पास जा रही है यहाँ पे इक्वेशन, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि दिस ए बी वाली लाइन, ये जो ए बी वाली लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ए बी वाली लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। सो बेटा ए बी की इक्वेशन ना ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। दिस इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट। ए बी की इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, और प्रीवियसली आई नो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑल्सो, जो कि हमें मेन सवाल में कहाँ पे दी हुई है, मेन सवाल में हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल दी हुई है। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इफ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, सो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ब्लू लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूँ, विच इज एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, और वाई की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद सेवन एक्स माइनस टू। सो ये हो गया एक्स माइनस एट होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे लिखा सेवन एक्स माइनस टू माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। This will become x minus 8 whole square plus 7x minus 6 whole square is equals to 100। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, और यहाँ से अगर वील ट्राई टू फिगर आउट द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, हम x के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे दो, और देन वी विल सॉल्व इट फर्दर ताकि हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट वैल्यू आ सके। तो सर्कल का सवाल काफी ज्यादा डिटेल हो सकता है, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप होनी चाहिए। सो दिस गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x प्लस 64, एंड देन इट इज गोइंग टू बी 7, ये 49x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस इज गोइंग टू बी 42, और ये आपके पास 84x हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 36 इज इक्वल्स टू 100, ये वैल्यू आएगी। और ये एडअप होने के बाद ये 50x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16, और ये हो जाएगा माइनस 100x, और 64 प्लस 36 दैट इज गोइंग टू बी 100, ये रहा माइनस 100, ये रहा, ये आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। सो दिस गोइंग टू बी 50x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 0। नाउ यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, आपने यहाँ पे x कॉमन निकाला, ये हो गया 50x। और एक और काम कर लेते हैं ना कि हम इसके अंदर 50x को ही कॉमन निकाल लेते हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू टेक आउट 50x एज अ कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। 50x इज इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन से आपने अलग से सॉल्व किया, ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 50। सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 0। एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई, एंड द अदर वैल्यू यू आर गेटिंग इज x माइनस टू इज इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो एक आपके पास x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ रही होगी, एक 2 आ रही होगी। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पास्ट पेपर्स। आपको अगर प्रॉपर ग्रिप नहीं होगी मतलब पूरे टॉपिक के ऊपर, तो आपको पास्ट पेपर्स में बहुत मसला होगा। सो दैट मीन्स यू नीड टू रिकॉल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल ईच एंड एवरी सिंगल रूल ऑफ सर्कल के जो भी मैंने लिखवाए वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे आ रहे होंगे।